So in this class we will learn about the combination of the resistances. We will learn two type of the combination. One is called as series combination, other is called as parallel combination of the resistors. We know that current in the circuit mainly depends on two things. We have learned Ohm's law, and in Ohm's law we have learned I is equal to V by R. So we can say current in the circuit depends upon two things. It depends upon the potential difference, that is voltage, and it also depends upon the resistance of the circuit R. Okay, so current in the circuit mainly depends upon the potential and the resistances, right? So by varying the resistance, we can get the desired current. By varying the resistance, what we can get? We can get the desired current. To vary the resistance, we can connect the available resistance in different situations. Okay, and that is called as combination of the resistances, and we will first say series combination of the resistors. What will say? Series combination of the resistors. चलिए बच्चों ध्यान देना, क्या करना है आपको? Series combination of resistances. Let's see what we need to do. So consider we have three resistances R1, R2 and R3, and you are aware about the symbol of the resistance. Let's say this is the first resistance R1, this is other resistance R2, and this is the third resistance R3. And we have these three resistances in series. Means what? We need to connect the resistances end by end. Means end of this resistance is connected with this resistance, end of this resistance is connected with this resistance. Right, and these are your extreme points, let's say X and Y. Okay, and here we will supply the voltage to all these three resistances. Let's say the voltage is V, and here we are putting some emitter A. हमने यहाँ पर एक एमीटर रखा है करंट मेजर करने के लिए, ये प्लस होता है, ये माइनस होगा. ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला एंड कैसा होगा? प्लस, ये वाला एंड आपका माइनस होगा एमीटर का भी. तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर connected end to end. When the resistances are connected end to end between two points, they are connected end to end between two points, they are called in series. They are called in what? Series. We can say the resistances are connected in series. Okay, fine. Now, what to do with this series combination? You have to remember two facts. See, the very first thing is, in the series combination, if the current flowing from the battery is I, see, you are very good to observe the circuit that the same current will flow from all the resistance. Yes or no? Yes or no? Same current will flow from all the resistance. If the current from the resistance R1 is I, तो वही I आपका आगे जाएगा, वही I आपका और भी आगे जाएगा, और वही I आपका बाहर आ जाएगा. So we can say current flowing from all the resistances are same. So here I will write in series combination, current from all resistances are same. Right? Current from all the resistances are same. Now, what to do with the voltage? So if you put a voltmeter parallel to resistance R1, अगर आपने R1 के पैरेलल में तो एक वोल्टमीटर लगा दिया, सपोज इसने मेजर किया V1 वैल्यू, कितना मेजर किया इसने? V1 जितना वैल्यू मेजर किया. वी आर पुटिंग वन मोर वोल्टमीटर इन पैरेलल टू R2. R2 को पैरेलल में एक दूसरा वोल्टमीटर लगाया हमने, एंड लेट्स से इट इज मेजरिंग द वोल्टेज V2. ओके, सिमिलरली जो R3 है उसके पैरेलल में हमने तीसरा एक वोल्टमीटर लगाया, एंड इट इज मेजरिंग द वैल्यू V3. Right, and you will find that
this total voltage drop of battery or total potential of battery will divide between these three resistors. Means if you will add this voltmeter value V1, this reading V2 and this reading V3, you will find this addition of 3 voltage is equal to the total voltage of the battery. इसका मतलब है कि सीरीज कनेक्शन में जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, वो सारे रेजिस्टेंस के बीच में डिवाइड हो जाता है. क्या होगा, ये आपके सारे रेजिस्टेंस के बीच में डिवाइड हो जाएगा. करंट विल रिमेन सेम, current will remain same, but the potential drop of battery will divide, right? So we will write here potential drop of battery divide between the resistances, right? Potential drop will divide between the resistances. Is it clear? Is it clear? ये स्टेप समझ में आया सबको? बोलो ये स्टेप सबको समझ में आया? सीरीज में सबका करंट सेम जाएगा और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है. ओके, फाइन. नाउ व्हाट विल वी डू? आई विल राइट टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज हाउ मच? V. So I will write total voltage of battery V is equal to this V will divide in 3 parts, V1, V2, V3. अगर एक और रेजिस्टेंस है तो V4, एक और है तो V5 whatever. अभी 3 रेजिस्टेंस है तो we will write this voltage of the battery is equal to V1 plus V2 plus V3. Yes or no? Yes or no? Okay. Now we will use the Ohm's law. चलो बच्चों, Ohm's law क्या कहता है? तो आपको तो पता ही होगा. Ohm's law कहता है कि V equal to IR. ऐसा है ना, Ohm's law, V equal to IR. Yes or no? Okay, so for this resistance voltage is V1, current तो सब में से I जा रहा है and its resistance is R1. Let's write it here. So for first resistance you can write V1 is equal to I into R1. लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ऐसा. For second resistance you can write V2 equal to I into R2. Getting it? समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? And for the third resistance you can write V3 is equal to I into R3. V3 equal to what? I into R3. So voltage drop across this resistance is IR1. Voltage drop across this resistance is IR2. Voltage drop across this resistance is IR3. Simple. Simple. Now let's put all the voltage drop here. यहाँ पे सारे voltage drop रखते हैं बच्चे, and then let's see what will happen. So I can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. V is equal to what? V1 plus V2 plus V3. Right? Okay. What is V1? IR1. What is V2? IR2. Okay. What is V3? IR3. Can I take I common? So I can write V is equal to I common, R1 plus R2 plus R3. Can I write it like this? Yes or no? Yes or no? Can we write it like this? Okay. Now we are going to find the equivalent resistance. Equivalent means if I remove all these 3 resistors and if I want to use only one resistance which draws same current from the battery, अगर इन तीनों को निकाल के एक ही रेजिस्टेंस लगा देना है जो बैटरी में से सेम करंट ड्रॉ कर पाए, तो उस अकेले रेजिस्टेंस को हम कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं उसको आप? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. राइट. तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना, मैं यहां पे थोड़ा सर्किट बनाऊंगा and I will write it. For equivalent resistance, मुझे क्या करना है बच्चों? देखना ध्यान से. बैटरी तो मुझे यही रखना है जो पहले है. I put an emitter also. अब मुझे इन तीनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा देना है बच्चों R. मैंने क्या किया बच्चों? सबको हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया R. तो ये अकेला रेजिस्टेंस जो है ना वो खींचना चाहिए जो इन तीनों ने मिलकर खींचा है.
तो तीनों ने मिलकर I करंट खींचा है ना, तो ये अकेला भी I करंट खींचने के कैपेबल होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कहते हैं। चलिए, तो खाली इतने सर्किट के लिए अगर आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा बताइए? तो यू कैन राइट फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलिए वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R। इसके लिए मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई करूं बच्चों? वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R अप्लाई करूं। ओके, तो हियर आई कैन राइट V इक्वल टू I इंटू R। लेट्स गिव इट नेम एज स्टेटमेंट 2, लेट्स गिव इट नेम एज स्टेटमेंट 1। चलिए, यहां भी V इक्वल टू समथिंग है, यहां भी V इक्वल टू समथिंग है। क्या मैं दोनों को इक्वलाइज कर दूं? क्या मैं दोनों को इक्वलाइज करूं? बिकॉज़ यहां भी V इक्वल टू समथिंग, यहां भी V इक्वल टू समथिंग, सो आई कैन इक्वलाइज 1 and 2। ओके, राइट, इक्वलाइजिंग 1 and 2। चलिए, 1 क्या है बच्चा आपका? V इक्वल टू I into R1 plus R2 plus R3 is equal to, यहां पे क्या है? V इक्वल टू IR। ओके, चलिए I कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा बच्चों सीरीज में? R1 plus R2 plus R3, राइट। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों आपका? R1 plus R2 plus R3, मतलब जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना सबको आप प्लस कर दो और उतना ही एक रेजिस्टेंस लगा दो, यू विल गेट द सेम इफेक्ट। इन सबको मिलके जो इफेक्ट है ना आपको अकेले का इफेक्ट मिल जाएगा इन सीरीज कनेक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट नाउ, आपके जो होम अप्लायंसेस है बच्चों को सीरीज में कनेक्टेड होते हैं कि पैरेलल में? अगर होम अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट हुआ तो क्या होगा पता है? अगर यहां से एक भी कंपोनेंट फ्यूज हो गया ना, उड़ गया ना, तो सर्किट पूरा ही बंद हो जाएगा। सपोज मान लो बच्चों, सपोज कि यहां पे आपका फैन है, यहां पे आपका लाइट है और यहां पे आपका मान लो फ्रिज है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ना, अगर सपोज मान लो बच्चों लाइट उड़ गया, लाइट उड़ गया मतलब ये सर्किट यहां से टूट गया। हाँ क्या ना, लाइट उड़ गया मतलब ये सर्किट टूट गया यहां से। ओके, तो कैन यू टेल मी क्या फ्रिज चलेगा? फ्रिज चलेगा? फ्रिज नहीं चलने वाला, बराबर। क्या ये फैन चलेगा? क्या ये फैन चलेगा? फैन भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब सर्किट में एक जगह ब्रेकडाउन हुआ ना तो करंट आएगा ही नहीं बैटरी में से। करंट चलो यहां से आ भी गया, फिर क्या यहां से आत्महत्या करेगा? कूद जाएगा करंट यहां से। हाँ, करंट के यहां से आत्महत्या करेगा फिर अगर आया तो। मतलब अगर सर्किट में एक भी कंपोनेंट ब्रेकडाउन हुआ ना तो बैटरी में से करंट ही ड्रॉ नहीं होता है, मतलब पूरा सर्किट ही बंद होता है। क्या होना है? पूरा सर्किट ही बंद हो जाने वाला है। इसीलिए आप दिवाली का लाइटिंग देखोगे ना, दिवाली के लाइटिंग में एक कलर की अगर एक लाइट भी खराब हुई ना तो उसका पूरा लाइन खराब हो जाता है। आगे ना, दिवाली में बेसिकली 3-4 कलर की लाइटिंग होती है, एक ही के अंदर रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। तो अगर ग्रीन का एक लाइट उड़ा ना तो पूरे का पूरा ग्रीन का लाइट बंद हो जाएगा। देखा कि नहीं देखा ऐसा? देखा है कि नहीं देखा? बिकॉज ग्रीन वाले जितने भी होते हैं ना वो सारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो एक भी जगह से एक भी ग्रीन गया ना, व्हाट विल हैपन? पूरा पूरा ग्रीन बंद हो जाएगा। बट ब्लू या रेड को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ब्लू या रेड जो है ना वो उसके साथ पैरेलल में लगे, वो अपना काम करते रहेंगे। समझे आप? ओके, तो दिवाली की जो लाइटिंग है ना, दिस इज इन द सीरीज कनेक्शन। समझ आ गया आपको सीरीज कनेक्शन क्या है? वो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या है वो क्लियर? आपको क्या करना है? सीरीज में इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे को जोड़ देना है, यू विल गेट द इक्विवेलेंट। ओके, चलो कॉपी करो फटाफट इक्विवेलेंट सीरीज को, बस हो गया। Okay, the second combination is called as a parallel combination of the resistances. In parallel, see what we are going to do. Logic समझ लो बच्चों, connection कैसे करना है। Suppose it is your battery. This is your battery having voltage V, right? Okay, and these are the n terminals of the battery. एक टर्मिनल यहाँ पर है बच्चों बैटरी का और एक टर्मिनल यहाँ पर है बैटरी का। Now you have 3 resistances R1, R2 and R3. Okay, let's connect R1 resistance directly across the battery. हमने क्या किया बच्चों? R1 रेजिस्टेंस को डायरेक्टली बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। दिखा आपको? सिमिलर, there is another resistance R2.
We will also connect R2 directly across the battery. R2 को भी हमने क्या किया बच्चों, डायरेक्टली बैटरी का क्रॉस कनेक्ट कर दिया. Okay, let's have one more resistance R3. It is also directly connected across the battery. Right, and this combination is called as parallel combination of the resistances, where all ends are connected with one terminal and other end is connected with the other terminal of the battery. Right, so we will write here in parallel combination, one end of all resistances are connected with one terminal of battery and other ends with other terminal of battery. चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज का क्या हो रहा है. तो अगर मुझे वोल्टेज जानना है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टमीटर लगाऊंगा. राइट, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि R1 कितना वोल्टेज खा रहा है तो मैं क्या करूंगा, R1 के अक्रॉस में एक वोल्टमीटर लगा दूंगा. ओके, एंड सपोज ये बैटरी का वोल्टेज कितना है बच्चों, V है. कितना है बैटरी का वोल्टेज, V है. राइट, एंड जब आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगाओगे ना R1 के साथ पैरेलल में, you will find that सही तो है दिस व्हाट हैपेंड, रेजिस्टेंस लिखा है ना. ओके, so if you join the voltmeter across the resistance R1, you will find that कि ये voltmeter का जो रीडिंग है ना वो एग्जैक्टली बैटरी का जो वोल्टेज है ना उतना ही आएगा. ये वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा बच्चों, एग्जैक्टली जो बैटरी का वोल्टेज है ना वही आएगा. अगर 2 वोल्ट का बैटरी है ना तो इसके ऊपर वोल्टमीटर लगाओगे ये 2 वोल्ट ही बताएगा. Right, similarly, if you connect voltmeter across R2 resistance like this, तो ये भी सेम वोल्टेज बताएगा जो बैटरी का है. Right, if you connect voltmeter across the resistance R3, तो ये R3 का वोल्टमीटर है ना वो भी सेम वोल्टेज बताएगा जो बैटरी का है. इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलता है जितना बैटरी का है. आगे ना से yes. So I will write the first important statement here. In parallel combination, all resistances have same potential difference across that and which is equal to potential of battery. बोल बच्चा लोग, इतना समझ में आ गया तुमको? इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना इतना समझ में? क्लियर? तो हर एक को सेम वोल्टेज मिला. देखो सीरीज में क्या हुआ था, वोल्टेज टूट गया था. सीरीज में क्या हुआ था, वोल्टेज के टुकड़े हुए थे, करंट सेम गया था. यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, वोल्टेज सेम मिल रहा है, करंट के टुकड़े होने हैं. कैसे? अगर एक एमीटर यहाँ पे लगाओ R1 के साथ, लेट्स से इसने वैल्यू मेजर किया I1. कितना वैल्यू मेजर कर रहा है ये I1. एक एमीटर यहाँ पे लगाओ इसके साथ, ये मेजर कर रहा है I2, बराबर है. और एक एमीटर यहाँ पे लगाओ R3 के साथ, ये मेजर कर रहा है I3. और एक एमीटर यहाँ पे लगाओ बाहर और ये मेजर कर रहा है I. समझ आया मैंने क्या किया? वो हर एक रेजिस्टेंस वाली ब्रांच के साथ एक एक एमीटर लगा दिया, सबका रीडिंग ले लिया I1, I2, I3. और एक एमीटर सीधा बैटरी के साथ लगा दिया, उसका मेजरमेंट ले लिया I. तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि दिस I is equal to what? I1 plus I2 plus I3. सिंपल सी बात है बच्चा लोग. अगर तुम्हारे पास 50 रुपए है, 50 में से तुम्हें अगर 3 जन को डिवाइड करने हैं, एक को 10 दे दो, दूसरे को 10 दे दो, तीसरे के पास कितने बचेंगे? 30 बचेंगे ना. तो ये सेम ऐसा ही लॉजिक है कि यहाँ पे I करंट आया. अभी करंट ने देखा मेरे पास तो 3 रास्ते हैं जाने के. करंट ने क्या देखा कि मेरे पास आगे जाने के 3 रास्ते हैं. ओके, तो करंट इस रास्ते से गया कितना? I1 जितना. इस रास्ते से कितना गया? I2 जितना. और इस रास्ते से कितना गया? I3 जितना. मतलब यहाँ पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि करंट फ्रॉम बैटरी is
डिवाइडेड बिटवीन द रेजिस्टेंसेस। तो मान लो कि टोटल करंट I है, उसके 3 टुकड़े बने हुए I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी तो मैं यूज करता हूं ओम्स लॉ। ओम तेरा लॉ यूज करेंगे बच्चा। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? तो आपको तो पता ही है भाई, ओम्स लॉ कहता है कि I इक्वल टू V बाय आर। मुझे यहाँ पे अभी I का काम है, तो व्हाट आई विल राइट I इक्वल टू V बाय आर। लॉ क्या है बच्चा? आपका लॉ है आपका कि V बाय I जो है दैट इज इक्वल टू R। अभी मुझे यहाँ पे I का काम है, आई विल राइट I इक्वल टू V बाय आर। I इक्वल टू व्हाट? V बाय आर, राइट। चलिए, तो मैं लिखूंगा बच्चों I1 I2 and I3 मुझे चाहिए। हाँ, सी व्हाट यू नीड I1 I2 and I3, यस और नो? आएगा चाहिए ना I1 I2 I3। चलो I1 यहां से मिलेगा, तो इसका वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसका करंट कितना हो जाएगा बच्चों? V बाय R1। कितना हो जाएगा उसका करंट? V बाय R1। आगे ना, चलो दूसरे वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका करंट जा रहा है I2, वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R2, तो इसका करंट कितना हो जाएगा भाई? V बाय R2। कितना हो जाएगा इसका करंट? V बाय R2। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, चलो करंट आ रहा है I3, वोल्टेज कितना है इसका भी V, रेजिस्टेंस है R3, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका V बाय R3। समझ लिए क्या किया? वो I इक्वल टू क्या रखना है? V बाय R। सबका वोल्टेज तो सेम ही है जो बैटरी का है, रेजिस्टेंस अपना अपना रख देना है। चलिए, ये सारे वैल्यू उठा के इधर डालते हैं। तो आपको इस स्टेटमेंट के बाद ये लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे वापस, ठीक है? ओके, चलिए बच्चों, I1 की जगह हम क्या लिखेंगे? V बाय R1। I2 की जगह लिखेंगे V बाय R2। I3 की जगह लिखेंगे V बाय R3। सबका V कॉमन बचा यहाँ पे 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 और यहाँ पे है I। अभी वापस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबको निकाल के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो क्या करोगे? क्या करेंगे बच्चों? अगर इक्विवेलेंट की बात करनी है आपको, तो आप लिखोगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? ये सबको निकाल दूंगा, सबको निकाल के एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और उस अकेले रेजिस्टेंस के लिए I कितना आएगा बच्चों? I इक्वल टू V बाय R। वो अकेले रेजिस्टेंस का करंट कितना रहना है बच्चों? तो इन सबको निकाल के आपको क्या करना है? देखो, ये आपका बैटरी, ये आपका एमीटर, और यहाँ पे सबको निकाल के एक ही रेजिस्टेंस आपको लगा देना है R। ये R जो है वो अकेला इतना ही करंट खींचना चाहिए जो तीनों ने मिलकर खींचा है। समझे आप? और बैटरी भी सेम रखना है, जैसे मैंने आगे बताया ना सीरीज में, ये वैसा ही सेम होने वाला है पैरेलल में। ओके, कि सबको निकाल के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो वो अकेला कितना लंबा होना चाहिए ताकि वो अकेला उतना करंट खींचे जितना सब मिलके खींच रहे हैं। समझ आ रहा है आपको लॉजिक क्या है वो? ओके, यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? तो आई विल राइट फॉर दिस वन। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? इसके लिए मैं लिखूंगा I इक्वल टू V बाय R। ओम्स लॉ अप्लाई करो। I इक्वल टू व्हाट? V बाय R। तो मैंने वही अप्लाई किया बच्चों, I इक्वल टू V बाय R। अभी यहां भी I का इक्वेशन है, इधर भी I का इक्वेशन है। कंपेयर करें दोनों को, कंपेयर करें दोनों को। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, हैव यू रॉट दिस? लिखा आपने स्टेटमेंट? बाकी ये लिखना, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। आई विल राइट हियर V बाय R इज इक्वल टू V बाय 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। What you will write? V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Yes or no? Can you write like this? लिख सकते हो आप ऐसा? चलिए, V भी कट कर देंगे। यहाँ बचा 1 by R। क्या बचा बच्चों? यहाँ पे आपका 1 by R बचा। ओके, तो अब आपका फाइनल फॉर्मूला में कहाँ लिखो? आप बताओ कहाँ लिखूंगा फाइनल फॉर्मूला? लेट मी राइट हियर 1 by R। यहाँ बचा 1 by R इज इक्वल टू, यहां बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ना, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में आपको क्या करना है? सारे रेजिस्टेंस को इनवर्स करके प्लस करना है, उससे आपको इक्विवेलेंट का भी इनवर्स मिलेगा। गॉट इट? सीरीज में हमने क्या किया? डायरेक्ट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में हमने क्या किया बच्चों? R इक्वल टू डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में क्या करना है बच्चों? 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब सोचो कि घर के सारे अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करना है कि पैरेलल में करना है?
तो ऑब्वियसली घर के सारे अप्लायंस को आपको पैरेलल कनेक्ट करना है। उससे दो फायदे। पहला फायदा तो पैरेलल में अगर एक बंद भी हो गया ना, सपोज एक बंद भी हो गया ना, तो बाकी रास्ते तो खुले ही, मतलब बाकी इंस्ट्रूमेंट चलते रहेंगे, सारे बंद नहीं होने वाले एक के उठने से। यस और नो? यस और नो? अगर पैरेलल में अगर एक डिवाइस खराब भी हो गया तो बाकी डिवाइस जो है वो चलते रहेंगे। दूसरी बात सुनो भाई, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, पैरेलल में सबको वोल्टेज सेम मिलेगा जो बैटरी का है। तो एक्चुअली आपके जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फैन हो गया, राइट, या फिर आपका जो लाइट हो गया, दे ऑल आर बिल्ट और दे ऑल आर कंस्ट्रक्टेड टू वर्क ऑन 230 वोल्ट। कितने वोल्ट पे सारे काम करते हैं बच्चों? 230 वोल्ट पे काम करते हैं। और आपके घर पे भी जो वोल्टेज आता है ना, वो भी 230 वोल्ट ही होता है। अब अगर सोचो आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में कनेक्ट करो तो सबका वोल्टेज ड्रॉप तो डिवाइड हो जाएगा, आगे ना? आगे ना? सपोज मान लो कि आपके घर पे 240 वोल्ट आ रहा है, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपके घर पे कितना वोल्ट आ रहा है? मतलब सपोज 240 वोल्ट आ रहा है। और अगर मैंने 4 पंखों को सीरीज में लगा दिया तो हर एक पंखे को खाली कितना वोल्टेज मिलेगा? 7 वोल्टेज मिलेगा हर एक को। हर एक पंखे को खाली कितना वोल्टेज मिलेगा? 7 वोल्टेज मिलेगा। 7 वोल्ट पे पंखा चलेगा ही नहीं बराबर, बहुत धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि उसको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज तो मिला ही नहीं, तो वो क्यों चलेगा? समझ में आई आपको बात? बट अगर आपने वही 4 पंखों को 240 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो सबको 240 वोल्ट मिलता है। बिकॉज पैरेलल में क्या होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज है ना, उतना ही वोल्टेज सबको मिलता है पैरेलल में। यस और नो? मतलब ऑल विल गेट द सेम वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट। तो पैरेलल में सारे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के दो फायदे। पहला तो सबको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा जो उनका रिक्वायरमेंट है, और दूसरा अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब भी हुआ तो बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बंद होने वाले नहीं है। एंड दैट इज व्हाई ऑल द होम अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, चलो इसको कॉपी करो फटाफट।